Good morning students, welcome again here in this video tutorial. Myself Nashima Khan and students, as you all of you know that we are discussing our chapter number 5 of civics, Women Change the World. Student, this is your lecture number 3. We have already covered this chapter in lecture number 1 and in our lecture number 2, where we discussed some topics also like fewer opportunities and rigid expectations, breaking stereotypes, learning for change, and schooling and education today. So students, now let's start our lecture number 3 with topic Women's Movement. Women and girls now have the right to study and go to school. Yes, I'm talking about at present time in our country, India. Now, women and girl, yes, have the right. उनको अब right है that to study and go to school. There are other spheres like legal reform, violence, and health, where the situation of women and girls has improved. काफ़ी और भी अदर स्पेयर्स हैं जहाँ वुमेंस की जो है वुमेन एंड गर्ल्स की जो कंडीशन है जो सिचुएशन है वो इम्प्रूव हुआ है. जस्ट लाइक यू कैन से दैट लीगल रिफॉर्म, वायलेंस एंड हेल्थ. These changes have not happened automatically. ये जो changes हैं ये एकदम automatically नहीं आए हैं. Women have individually and collectively struggled to bring change. Women ने struggle किया है, yes, to bring these changes. This is called women's movement, or you can say that this struggle is known as the women's movement. What it called? Women's movement. And you know what, beta? Individually, women and women's organization from different parts of the country are part of the movement. Yes, from different parts of the country, individual women and women organization, yes, they all took part of this movement. Many men support the women's movement as well. Even काफ़ी men ने भी support किया है in women's movement को. The diversity, passion and effort of those involved movement is very vibrant movement. Different strategies have been used to spread awareness, fight discrimination and seek justice. Yes, अलग अलग strategies जो हैं use की गई हैं क्या करने के लिए? Spread awareness करने के लिए, fight discrimination के against fight करने के लिए and seek justice. So now students, just let's come here. Campaigning. Which topic? Campaigning. Campaigns to fight discrimination and violence against women are an important part of the women's movement. So you can say that the best way has been to campaign against discrimination and violence. अब आपका campaigning करना या campaigns करना क्या होता है बेटा? It means अभियान चलाना. By whom? By women group और women's organization. अब women's group ने और women organization ने क्या किया? अभियान चलाया. Why? To आपका गवर्नमेंट को हाईलाइट करने के लिए कि इनइक्वालिटी हो रही है किसके साथ? वुमेन के साथ. कि हमारी जो कंट्री है, हमारी कंट्री में इक्वल राइट्स नहीं मिल रहे हैं वुमेन को एज कम्पेयर टू मैन. मैन के कंपैरिजन में वुमेन को उतने इक्वल राइट नहीं मिल रहे हैं. वुमेन्स के साथ क्या हो रही है? इनइक्वालिटी हो रही है. तो अभियान चला के यू कैन से दैट कि वुमेन ग्रुप ने और वुमेन ऑर्गेनाइजेशन ने गवर्नमेंट को हाईलाइट किया और गवर्नमेंट पर प्रेशर किया, गवर्नमेंट को प्रेशराइज करा कि इन जो आपके जो मैटर हो रहे हैं इन पे आप ज़रूर एक बार वर्क कीजिए. So that's why campaigns have also led to new law being passed. So that's why government ने कुछ new law भी पास किए. It led to enactment of a law in 2006 to give justice to women who face physical and mental violence in their homes. Yes, a law was made in 2006. When a law was made in 2006 to give women who face physical and mental violence within their home. पहले क्या होता था कि फिजिकल और मेंटल वायलेंस अगर किसी वुमेन के साथ होता था उनके घर में तो कोई इतना उस पर ध्यान नहीं देता था. बट
व्हेन इन 2006 एक लॉ पास हुआ जिसमें फिजिकल और मेंटल वायलेंस के, ताकि उसको पूरा जस्टिस मिल सके एंड ताकि उनके साथ कोई वायलेंस ना हो, कहाँ, फिजिकल और मेंटल उनके होम में. सो यू नो ऑल्सो कॉल्ड डोमेस्टिक वायलेंस सम लीगल प्रोटेक्शन. इसको डोमेस्टिक वायलेंस के खिलाफ भी कहा गया और लीगल प्रोटेक्शन भी दिया गया. Similarly, effort made by the women's movement led the Supreme Court to formulate guidelines in 1997. इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी एक गाइडलाइंस फॉर्मुलेट करी when in 1997 to protect women against sexual harassment at the workplace and within educational institutions. वेयर जहाँ वुमेन वर्क करती हैं, जो उनका वर्क प्लेस होता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होता है. सो सुप्रीम कोर्ट ने भी एक गाइडलाइंस फॉर्मुलेट करी व्हेन इन 1997, ताकि वुमेन प्रोटेक्ट हो सके अगेंस्ट किसके, एनी टाइप ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट. In the 1980s, yes, in the 1980s, for example, women group across the country spoke out against dowry debt. आपको पता है 1980s में उस टाइम काफ़ी क्या होता था, डाउरी डेथ होती थी. डाउरी के लिए केस ऑफ यंग ब्राइड्स बीइंग मर्डर्ड बाय देयर इन लॉज और हस्बैंड ग्रीडी फॉर मोर डायरी. काफ़ी जो यंग ब्राइड्स होती थी उनका मर्डर कर दिया जाता था बाय यस देयर इन लॉज और हस्बैंड. किसके लिए, ताकि वो ग्रीडी होते थे सम और मोर डाउरी, दहेज के लिए. डाउरी मीन्स दहेज. वुमेन्स ग्रुप स्पोक आउट अगेंस्ट द फेलियर टू ब्रिंग दीज केसेस टू जस्टिस. दे डिड सो बाय कमिंग ऑन टू स्ट्रीट, अप्रोचिंग द कोर्ट्स एंड बाय शेयरिंग इंफॉर्मेशन. वो स्ट्रीट्स पे उतर गई, अप्रोच लगाई उन्होंने और कोर्ट पे, एंड बाय शेयरिंग इंफॉर्मेशन. Eventually, this became a public issue in the newspaper and society, and the dowry laws were changed to punish families who seek dowry. सो जब वुमेन्स ग्रुप ने, वुमेन ऑर्गेनाइजेशन ने डाउरी सिस्टम के खिलाफ भी आवाज़ उठानी स्टार्ट करी, वो स्ट्रीट्स पे उतर आई, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को इस तरफ ध्यान करा, सुप्रीम कोर्ट पर प्रेशराइज करा. उन्होंने काफ़ी क्या किया, उन्होंने न्यूज़पेपर में भी इस इशू को, पब्लिक इशू को करा, ब्रिंग करा, सामने लाए, सोसाइटी में इस इशू को लाए. सो दैट्स वाई इस तरफ भी गवर्नमेंट का ध्यान करा. एंड गवर्नमेंट ने क्या करा, पनिश फैमिलीज हु सीक डाउरी, उन फैमिली को पनिश करने के लिए भी लॉज मेड करें. नाउ रेजिंग अवेयरनेस. विच टॉपिक, रेजिंग अवेयरनेस. एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वुमेन्स movement's work is to raise public awareness on women's right issue. important part है बेटा, क्या जो वुमेन्स का मूवमेंट चल रहा था उसको क्या करने के लिए, पब्लिक का ध्यान करने के लिए, पब्लिक को अवेयर करने के लिए कि वुमेन्स के राइट क्या है, वुमेन्स के इशू क्या है. किस तरह हम पब्लिक को अवेयर करें कि वुमेन के क्या क्या राइट है, वुमेन्स की क्या क्या इम्पोर्टेंस है. इस वुमेन्स मूवमेंट में भी वर्क हुआ. देयर मैसेज हैज़ बीन स्प्रेड थ्रू स्ट्रीट प्लेस. आपके स्ट्रीट प्ले होते हैं ना, तो वो मैसेज कैसे स्प्रेड किया गया पब्लिक को, कैसे पब्लिक को अवेयर कर सकते हैं. सो थ्रू स्ट्रीट प्ले, सॉन्ग एंड पब्लिक मीटिंग्स. आपकी पब्लिक मीटिंग्स हुई, सॉन्ग ओरी चिरैया, पूरा आपने सुना होगा ओरी चिरैया सॉन्ग. ये ओरी चिरैया जो सॉन्ग है ये पूरा वुमेन, एक गर्ल पे बेस है. सो इस तरह के सॉन्ग स्ट्रीट प्ले करके, देन पोस्टर्स, देन पोस्टर मेकिंग, देन सेमिनार्स. ऑल्सो सेमिनार्स होते हैं आपके. टीवी शो ऑल्सो, इवन टीवी शो भी आपका एक है इस पे बेस, सत्यमेव जयते. विच टीवी शो, सत्यमेव जयते. एंड पब्लिक मीटिंग्स होने लगी, सेमिनार्स, ताकि जो हमारी पब्लिक हैं उनमें पूरा उनको अवेयर किया जाए. किसके लिए, वुमेन के राइट्स के लिए, वुमेन के लिए. नाउ स्टूडेंट, नेक्स्ट वन इज प्रोटेस्टिंग. When a law or policy act against women interest, कभी कभी क्या होता है, कोई लॉ है या पॉलिसी है जब एक्ट करती है अगेंस्ट व्हाट, वुमेन्स इंटरेस्ट, देन वुमेन क्या करती है, वुमेन का जो ऑर्गेनाइजेशन चल रही है, वुमेन का जो ग्रुप है, पब्लिक रैलीज टेक प्लेस टू ड्रॉ अटेंशन. वो क्या करती है, पब्लिक रैली. और यू कैन से दैट द वुमेन्स मूवमेंट रेजेस इट्स वॉइस व्हेन वायलेशंस अगेंस्ट वुमेन take place or
for the example when a law or policy act against their interests. Then public rallies and demonstrations. Which one? Public rallies and demonstration are a very powerful way of drawing attention to injustice. वो क्या करती हैं? रैलीज निकालती हैं, पब्लिक रैलीज, एक साथ काफ़ी वुमेन एक जगह इकट्ठा हो जाती हैं, देन डिमॉन्स्ट्रेशंस करती हैं. वो उनका एक काफ़ी पावरफुल वे है. किसके लिए? ताकि टेक प्लेस टू ड्रॉ अटेंशन, ताकि वो गवर्नमेंट का या उसका अपनी तरफ जो है अटेंशन कर सकें. Then showing solidarity. Which one? Showing solidarity. Women's movement has also shown solidarity. वो जो वुमेन्स का मूवमेंट है वो सॉलिडारिटी को भी शो करता है. इट मीन्स क्या है ये सॉलिडारिटी मीनिंग? अ फीलिंग ऑफ यूनिटी बिटवीन पीपल. विच फीलिंग? अ फीलिंग ऑफ यूनिटी बिटवीन पीपल हु हैव द सेम इंटरेस्ट, गोल एक्सेट्रा. सो वो अपनी जो फीलिंग है, द वुमेन्स मूवमेंट इज़ ऑल्सो अबाउट शोइंग सॉलिडारिटी विद अदर वुमेन एंड कॉजेज. वो दूसरी जो वुमेन है उसके साथ जो कॉज है उसके लिए जो अपनी फीलिंग को सॉलिडारिटी शो करती है. और यू कैन से दैट आपने देखा होगा कि कोई प्रॉब्लम हो जाती है, जब किसी की एकदम सडन डेथ हो जाती है, जो हमारे काफ़ी अच्छी उस पे होते हैं, सो हम लोग क्या करते हैं? मौन. इन हिंदी यू कैन से दैट हम मौन रखते हैं, उनको सॉलिडेट करते हैं, उनको क्या शो करते हैं? अपनी सॉलिडारिटी शो करते हैं, अपनी फीलिंग शो करते हैं. So it is a feeling of unity between people who have the same interest, goal, etc. or showing solidarity with other women and causes. One important thing also beta, on 8th March, when on 8th March, International Women Day. Which day? International Women's Day. When we celebrate every year, yes, we celebrate every year on 8th March as an International Women's Day. Women all over the world come together to celebrate and renew their struggle. इस दिन क्या करती हैं? वुमेन एक साथ आती हैं एंड देन अपना जो रिन्यू है, उन्होंने जो सारा स्ट्रगल किया है उसको क्या करती हैं? सेलिब्रेट करती हैं. सो व्हेन वी सेलिब्रेट इंटरनेशनल वुमेन डे, we celebrate International Women Day on 8th March every year. One thing also beta, every year on 14th August, when every year on 14 अगस्त आपका क्या है? पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे है. एंड व्हाट अबाउट आवर कंट्री? आवर इंडिया इंडिपेंडेंस डे 15th of August. All of you know that. Then every year on 14th August, several thousand people gathered at Wagah on the border of India and Pakistan and hold a cultural program. आपको पता है एवरी ईयर 14 अगस्त को सेवरल थाउजेंड ऑफ पीपल गैदर होते हैं वेयर? एट वाघा. यस, ऑन द बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान. जो इंडिया और पाकिस्तान का वाघा बॉर्डर है और वहाँ काफ़ी कल्चरल प्रोग्राम. एंड यू नो वुमेन क्या करती हैं? कैंडल्स को होल्ड करती हैं एंड डेमोन्स्ट्रेट करती हैं वो solidarity between the people of India and Pakistan. Yes, women are holding up candles to demonstrate the solidarity and what feeling? Yes, solidarity between the people of India and Pakistan. So that's it, student. Thank you all of you. Have a nice day ahead.